So in the previous classes we have discussed about the escape velocity. Escape velocity में we have seen that ये क्या होता है? This is the minimum velocity by which if a body is projected vertically upward, then it will not return back on the surface of earth, yeah, it will overcome the earth gravitational field. Okay, then we have the next topic, orbital velocity. This is very important in the case of satellite setup. For that, what is the orbital velocity? ये क्या होती है? सबसे पहले इसको समझते हैं. We see that कि this is the velocity. What is the orbital velocity? Orbital velocity is the velocity which is required to put the satellite into its orbit around the earth. This is used in the case of the आर्टिफिशियल सैटेलाइट के केसेस में इसका यूज किया जाता है. और होता क्या है? आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स क्या करते हैं? दे रिवॉल्व अराउंड द अर्थ इन सर्टेन फिक्स्ड ऑर्बिट. तो फॉर द रेवोल्यूशन ऑफ दैट सैटेलाइट इन ए सर्टेन फिक्स्ड ऑर्बिट, दे शुड प्रोवाइडेड ए हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी through which they are orbiting in their own orbit around the earth. That particular velocity, which is horizontal, is known as the orbital velocity. It's clear कि it is the horizontal velocity by which a satellite follow या revolve around the earth in a stable circular path. It's clear? तो इसको आप जनरलाइज भी कर सकते हैं कि सपोज दैट फिगर आप देखिए, वी हैव ए अर्थ अराउंड विच एट ए हाइट h ए सैटेलाइट ऑफ मास m is revolving, is arbitrating. This arbitrating velocity, yeah, this is the velocity by which the satellite revolve in their fixed orbit, stable orbit around the earth, is the orbital velocity. It's clear? It's simple definition is there कि orbital velocity is the velocity which is required to put the satellite into its orbit around the earth. और इसको हम सिंबल में जब भी न्यूमेरिकल्स करते हैं या एक्सप्रेशन में, वी विल राइट डाउन विथ VO. जैसे कि हमने escape velocity में लिखा था VE, E for escape. Similarly, we will use O for the orbital. So this is the orbital velocity. Now we are going to find out the expression for the orbital velocity. For that, you see the first figure. What we have to take here? We have taken M. यहाँ पे this capital M we can take mass of the earth. Capital M हम ले लेते हैं क्या? This represent the mass of earth. ठीक. स्मॉल m r is radius. किसकी? रेडियस ऑफ अर्थ. आप याद रखिएगा, दिस सिंबल इज स्टैंडर्ड, हम यूज करते हैं मैक्सिमम. और स्मॉल m क्या है? यू सी द फिगर इज मास ऑफ satellite h is the height above earth surface, above earth surface. ठीक. एंड दिस VO एक सिंबल हम यूज करेंगे. R प्लस H हमने यूज किया है. देखिए R प्लस H क्या है? दिस इज ऑर्बिटल रेडियस. इसको हम बोलते हैं ऑर्बिटल रेडियस ऑफ सैटेलाइट. इट्स क्लियर.
यहाँ पे अगर h फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ, ये अगर हाइट h है and this radius is r, then this total will be r plus h, and this is what? This is known as orbital radius of the satellite. Small m I have written. This capital M, VO क्या है? We are taking VO is orbital velocity, which we have to find out orbital velocity of the satellite. ये हमने ले लिया. Then okay, now अब हम फिगर्स में देखते हैं. Now from Newton's law of gravitation, Newton's law of gravitation, the gravitational force यहां पे हम ग्रेविटी भी बोल सकते हैं, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट द अर्थ. तो ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटी ऑन सैटेलाइट ड्यू टू अर्थ, this will be how much? F is equal to G, mass of the earth capital M, mass of the satellite small m, and distance between the earth and satellite R plus H, this is whole square. This is the equation number 1. चलिए, it's clear. Now this satellite is moving in a circular orbit. So for that what force is required? The centripetal force. आपने पढ़ लिया है in case of a rotational motion. तो ये हमारे पास centripetal force which is required for the circular motion. The centripetal force, which is obtained by this force, the centripetal force which is required by the satellite, to keep in their orbit, is given by क्या हो जाएगा? F बराबर आपने क्या पढ़ा है फार्मूला? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स Fc बराबर पढ़ते थे आप, if a body of mass m moving with velocity v in a circle of radius r, तो ये क्या होता था? mv square upon r. तो यहां पे क्या है? We have a satellite of mass m moving with velocity v o in a distance r in a radius r plus h. So from that we can write down F centripetal force, which is given by this way. Fc लिख लेते हैं, and this will be m v0 square upon radius कितनी है? r plus h. This is the equation number 2. We have F is equal to Fc. क्यों? क्योंकि this Fc centripetal force is obtained by the gravitational force of attraction या force of gravity की वजह से. Therefore substitute the value this G capital M small m upon R plus H in equilibrium. इसको हम in equilibrium, ये हमारे पास हो गया. R plus H whole square is there is equal to small m v0 square upon R plus H. Some term will be cancelled out. This R plus H will be cancelled out. Small m will be cancelled out. So what we will get? This we will get v0 square. This term we have transferred is equal to G capital M upon R plus H. It's clear? Yeah. Orbital velocity VO is equal to, square is there, so we can take the square root on both sides. So we will get capital G capital M upon R plus H. This is the expression for the
orbital velocity due to a earth, या for a satellite which is revolving around the earth in a circular orbit at a height h, where r, capital R, is the radius of earth, h is the height from the surface of earth at which the satellite is revolving, capital G is the gravitational constant, and capital M is the mass of the earth. अब इसी एक्सप्रेशन को लिखते हैं इन टर्म्स ऑफ द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इन टर्म्स ऑफ जी, इन टर्म्स ऑफ स्मॉल जी, v0 कैन बी रिटन एज, क्या होता है आपका g बराबर आपने पढ़ा होगा कैपिटल G कैपिटल M अपॉन R स्क्वायर. तो व्हाट वी कैन गेट, GM इज इक्वल टू GR स्क्वायर. देयरफॉर वी हैव v0 इज इक्वल टू अंडर रूट GM बराबर क्या होगा GR स्क्वायर अपॉन R प्लस H. R स्क्वायर इज देयर, तो R स्क्वायर तो वी कैन टेक कॉमन, तो व्हाट विल गेट R अंडर रूट G upon R plus H. This is the expression for the orbital velocity in terms of the acceleration due to gravity. और फर्स्ट वाला किसमें था, in terms of the capital G gravitational constant. अब अगर हम बात करें पर्टिकुलरली, अगर हम मान लें if the satellite revolves near to the surface of Earth, particularly if we say if satellite is revolving near to the surface of Earth, then we can take h बराबर 0 हम ले सकते हैं. तो देन व्हाट वी हैव, v0 इज इक्वल टू अंडर रूट r इज आउटसाइड g अपॉन r प्लस 0. वी कैन राइट डाउन अंडर रूट g r स्क्वायर अपॉन r. दिस r we have entered here, so we have g r square and one r will be cancelled out. This will get g r. ठीक, तो this is the orbital velocity for a satellite revolving near the surface of Earth. That means if h is approximately 0. This is there. Now substituting the value of this, we can find out its values. So what should be the value of this? ये हम वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं. v0 इज इक्वल टू अंडर रूट जी का वैल्यू कितना होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू अर्थ की रेडियस 6.4 इंटू 10⁻³ इंटू 10⁻6 इज देयर 6400 किलोमीटर. अगर मीटर में लिखें तो 6.4 इंटू 10⁻6 मीटर. अब इफ यू सॉल्व दिस तो ये हमारा कितना आता है, दिस विल कमिंग 7.92 इंटू 10⁻³ मीटर पर सेकेंड, या v0 is approximately equal to 7.92 kilometer per second. This is the value by which, this is the velocity by which a satellite should be projected horizontally to revolve around the surface of Earth. It's okay. So this is the velocity of orbital velocity when the satellite is revolving near the surface of Earth. चलिए कुछ डिस्कस कर लेते हैं सम इम्पोर्टेंट पॉइंट रिलेटेड टू द ऑर्बिटल वेलोसिटी. तो फ्रॉम द एक्सप्रेशन वी हैव सीन फ्रॉम expression of
orbital velocity. From expression of orbital velocity, क्या एक्सप्रेशन है? v0 is equal to अंडर रूट स्टैंडर्ड फॉर्म g कैपिटल M upon r plus h. What conclusion is there? First conclusion we have, it is independent of the, it is independent, it is independent of the mass of, यहाँ पे कैपिटल एम क्या है? मास ऑफ अर्थ है. मास स्मॉल एम आपने लिया था मास ऑफ द सैटेलाइट, वो यहाँ पे नहीं है. तो दिस इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास ऑफ द सैटेलाइट. इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द मास ऑफ द सैटेलाइट. सेकेंड फैक्टर इज देयर, डिक्रीजेज. अब देखिए, इफ वे increase this radius of the orbital या orbital radius of the satellite, मैंने बताया था r plus h को हमने क्या लिया था? दिस इज द रेडियस या ऑर्बिटल रेडियस ऑफ द सैटेलाइट. तो अगर ऑर्बिटल रेडियस ऑफ सैटेलाइट अगर हम इंक्रीज करते हैं तो वेलोसिटी विल डिक्रीज. और अगर ऑर्बिटल वेलोसिटी की जो रेडियस है दैट अगर डिक्रीजेज तो ऑर्बिटल वेलोसिटी शुड इंक्रीज. तो क्या होगा? दिस शोज दैट कि v0 डिक्रीजेज कब? जब r plus h increases with increase in the radius of orbit, with increase in radius of orbit or and increases with decrease in the, अगर ये डिक्रीज करेगा तो दिस विल इंक्रीज रेडियस ऑफ ऑर्बिट. देन नेक्स्ट पॉइंट, थर्ड पॉइंट इज देयर. थर्ड पॉइंट क्या है? इट डिपेंड्स अपॉन द, इट depends on the mass capital M and radius capital R of the, ये तो हमने पर्टिकुलर अर्थ के केस में लिया है. अगर हमारे पास कोई दूसरा प्लेनेट होगा तो उसकी रेडियस और उसका मास हो जाता. तो रेडियस R ऑफ द प्लेनेट about which the satellite revolves, about which the satellite revolves. मतलब अगर हमारे पास डिफरेंट प्लैनेट्स की हम बात करें तो इन केस ऑफ डिफरेंट प्लैनेट्स द ऑर्बिटल वेलोसिटी विल बी आल्सो डिफरेंट. अर्थ के लिए हमारे पास कुछ होगा, आपका जुपिटर है, हमारे पास अदर हैं, नेपच्यून है, अदर के केसेस में हमारे पास इसका वैल्यू डिफरेंट होगा. तो दिस इज about the important points related to the orbital velocity of a satellite revolving around the earth के केसेस में अगर हम बात कर रहे हैं तो ये क्या होगा? मास ऑफ द सैटेलाइट पे डिपेंड नहीं करता है. इट विल इंक्रीज इफ वी डिक्रीज द डिस्टेंस, इफ वी डिक्रीज द हाइट. और अगर हम हाइट को बढ़ाते हैं तो क्या होगा? देयर वेलोसिटी विल डिक्रीज. और अगर हाइट को हम कम रखते हैं, नियर टू द अर्थ अगर इसको रोटेट कराते हैं तो इसका वैल्यू आपका इंक्रीज करेगा. नियर द सरफेस ऑफ अर्थ हमने कैलकुलेट भी कर लिया, इसका वैल्यू कितना आ रहा था? 7.92 किलोमीटर पर सेकेंड या 7.92 इंटू 10³ मीटर पर सेकेंड. चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, रिलेशन बिटवीन VO मतलब ऑर्बिटल वेलोसिटी एंड VE मीन्स एस्केप वेलोसिटी. बोथ वी हैव डिस्कस्ड और दोनों का एक्सप्रेशन हमें याद है. तो अभी मैंने पर्टिकुलर केसेस में, हमने अर्थ के केसेस में हमने देखा था कि एस्केप वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी, वी आर राइटिंग द एक्सप्रेशन फॉर दिस टू. एस्केप वेलोसिटी पहले हम लिख देते हैं एस्केप वेलोसिटी का. एस्केप वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी फ्रॉम द अर्थ सरफेस, ऑफ अ बॉडी फ्रॉम अर्थ surface
अर्थ सरफेस कितना था, VE इज इक्वल टू अंडर रूट 2GR, ये तो हमने पढ़ा था। दिस इज इक्वेशन नंबर, हम ले लेते हैं इस इक्वेशन नंबर 1, एंड दिस वी हैव डिस्कस्ड ऑलरेडी, एंड ऑर्बिटल वेलोसिटी revolving close to the of a satellite revolving close का मतलब कि h को हम 0 रखते हैं, close to the earth surface कितना था, VO is equal to under root GR. From 1 and 2 what we can write down, from 1 and 2 we have VE is equal to under root 2 into under root GR. We can write down under root 2 GR को under root 2 we can write down separate, और under root GR we can write down separate. तो from this what we can write down, VE is equal to under root 2, और ये कितना है, VO. क्लियर? तो हमारे पास क्या हो गया, दिस इज द रिलेशन बिटवीन एस्केप वेलोसिटी, दिस इज इक्वेशन नंबर 3, एस्केप वेलोसिटी एंड द ऑर्बिटल वेलोसिटी. क्लियर? कि द रिलेशन बिटवीन एस्केप वेलोसिटी एंड ऑर्बिटल वेलोसिटी इज VE is equal to under root 2 into VO. That is the escape velocity of a body, that is the escape, क्या है, escape velocity क्या है, under root 2 times the orbital velocity of a body. तो क्या है, escape velocity of a body, escape velocity, इसी को हम वर्ड में लिख ले रहे हैं, that is the escape velocity of a body from the earth surface, is under root 2 times its velocity in a circular orbit just above the earth surface, इसी को क्या बोलते हैं, ऑर्बिटल वेलोसिटी, above the earth surface. दिस इज द रिलेशन, ये इंपॉर्टेंट है, इसका हम न्यूमेरिकल में काफी यूज करते हैं टू फाइंड आउट द ऑर्बिटल वेलोसिटी या एस्केप वेलोसिटी को फाइंड आउट करने के लिए. चलिए नेक्स्ट टॉपिक देख लेते हैं, टाइम पीरियड ऑफ अ सैटेलाइट. अभी तक हमने क्या किया, एस्केप वेलोसिटी पढ़ लिया, ऑर्बिटल वेलोसिटी पढ़ लिया. नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द टाइम पीरियड ऑफ ए सैटेलाइट. यू सी दैट अगर आपका सैटेलाइट है विच इज रिवॉल्विंग इन ए सर्कुलर ऑर्बिट, तो व्हाट इज द टाइम पीरियड क्या होता है, या पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन की डिफिनेशन अब क्या होती है. दिस इज द टाइम ड्यूरिंग विच द सैटेलाइट revolve around the earth a complete revolution. एक कंप्लीट रिवोल्यूशन में जो भी टाइम लगता है सैटेलाइट को अराउंड द अर्थ, दैट टाइम इज द पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन ऑफ ए सैटेलाइट, या उसी को बोलते हैं टाइम पीरियड ऑफ ए सैटेलाइट. चलिए इसको लिख लेते हैं, क्या होता है, टाइम पीरियड ऑफ ए सैटेलाइट इट इज द टाइम taken by a satellite, क्योंकि सैटेलाइट के ही पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन या टाइम पीरियड की बात कर रहे हैं. सैटेलाइट टू complete one revolution around the earth क्लियर. अब इसमें होगा क्या, टाइम कितना हो जाएगा, विच इज इक्वल टू
कैसे कैलकुलेट करेंगे? टी इज इक्वल टू, टाइम इज इक्वल टू क्या होता है? टोटल डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। आपने क्या पढ़ा होगा? वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक, तो टाइम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। ये कॉन्सेप्ट आप यूज करिए कि वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो टाइम बराबर क्या हो जाएगा? डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। अब इफ द सैटेलाइट रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ इन वन रिवोल्यूशन, इस कंप्लीट रिवोल्यूशन में टोटल टाइम कितना लगता है? दैट इज द टाइम पीरियड टी। तो अब रेडियस कितनी है? ये r प्लस एच इज देयर। तो टोटल डिस्टेंस वन रिवोल्यूशन में कितना इसने कवर किया? 2 पाई इंटू रेडियस ऑफ द आर्बिट या आर्बिटल रेडियस। तो ये कितना हो जाएगा? 2 पाई r प्लस एच। और वेलोसिटी किससे मूव कर रहा है? vo से। तो फ्रॉम दैट कॉन्सेप्ट वी आर यूजिंग, ये कितना हो जाएगा? टोटल डिस्टेंस। और टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा? सर्कमफरेंस ऑफ द आर्बिट। टोटल डिस्टेंस, तो ये कितना है? सर्कमफरेंस ऑफ द ऑर्बिट डिवाइडेड बाय ऑर्बिटल वेलोसिटी। ये वाला कंसेप्ट, ऑर्बिटल वेलोसिटी। ठीक है, नाउ सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ दिस। ये कितना हो जाएगा? 2 पाई, टोटल ऑर्बिटल रेडियस क्या है? r प्लस एच, डिवाइडेड बाय किस वेलोसिटी से मूव कर रहा है? vo से। इट्स क्लियर कि दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर द पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन इन टर्म्स ऑफ ऑर्बिटल वेलोसिटी। अभी हमने ऑर्बिटल वेलोसिटी का इक्वेशन हमने कर लिया है। तो नाउ सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ ऑर्बिटल वेलोसिटी, पुटिंग या सब्स्टिट्यूटिंग vo इज इक्वल टू, कितना हमने पढ़ा था? अंडर रूट जी, बेसिक फार्मूला, gm अपॉन r प्लस एच। चलिए इस वैल्यू कंप्यूट करते हैं इन इक्वेशन 1। तो व्हाट विल गेट? t इज इक्वल टू 2 पाई r प्लस एच डिवाइडेड बाई अंडर रूट gm अपॉन r प्लस एच। दिस विल बी व्हाट? इसको हम लिखेंगे तो वी कैन राइट डाउन, what we can write down? Under 2 pi r plus h under root r plus h अपॉन अंडर रूट gm, ये ऊपर चला जाएगा अंडर रूट में, और इंटू r प्लस h ये है। तो अगर इसको हम अंडर रूट में लिखना चाहें तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसका स्क्वायर, तो यही r प्लस h आ जाएगा बाहर, और एक ऑलरेडी हमारा ये r प्लस एच है। क्लियर? ये समझिए, ये हमारा 2 पाई r प्लस एच, ये हमारा r प्लस एच यहाँ था, इसको हमने अंडर रूट में करके इसका स्क्वायर कर दिया, तो सेम प्रॉब्लम। और ये हमारा ये r प्लस एच अपान में है, तो दिस विल बी अपसाइड। ये हमारा कितना हो जाएगा? 2 पाई अंडर रूट, इसको एक साथ लिख लेते हैं, तो ये हो जाएगा r प्लस एच का होल क्यूब डिवाइडेड बाई जी। क्लियर? तो दिस इज द पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन इन टर्म्स ऑफ g। ये इस एक्सप्रेशन ऑफ द ऑर्बिटल वेलोसिटी हमने रखा, तो ये इक्वेशन हमें मिला 2। अब इन टर्म्स ऑफ स्मॉल g भी अगर हम इसको पता करना चाहे तो क्या होता है? वी हैव gm इज इक्वल टू gr स्क्वायर, यूजिंग, ये हम पढ़ चुके हैं, यूजिंग दिस। तो व्हाट वी कैन राइट डाउन? t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट r प्लस एच होल क्यूब डिवाइडेड बाई जी आर स्क्वायर। एक इक्वेशन ये भी हम लिख सकते हैं। दिस इज द इक्वेशन नंबर 3। दिस आर द डिफरेंट इक्वेशंस फॉर द पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन। जो भी हमें वैल्यू दिया है न्यूमेरिकल्स में, तो अगर कैलकुलेट करना है तो हम फार्मूले को यूज कर सकते हैं। बेसिक फार्मूला हमारा है 2 पाई r प्लस एच अपॉन v0 ऑर्बिटल वेलोसिटी, और उसमें हमने ऑर्बिटल वेलोसिटी को डिफरेंट वैल्यू रख करके वी गॉट द डिफरेंट एक्सप्रेशन। क्लियर? अब इन टर्म्स ऑफ, अगर हम मास ऑफ द अर्थ की बात करें, इसको एक ये भी पढ़ लेते हैं, इन टर्म्स ऑफ द मास ऑफ द अर्थ, इन टर्म्स ऑफ मास
इन टर्म्स ऑफ मास ऑफ अर्थ। लिखना चाहे तो लिख लेते हैं। हमारे पास क्या होता है, मास इज इक्वल टू क्या होता है, वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाई डेंसिटी ऑफ अर्थ। वॉल्यूम कितना होता है 4/3 पाई आर क्यूब इंटू रो। इसको यूज करेंगे तो व्हाट विल गेट, टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट आर प्लस एच होल क्यूब डिवाइडेड बाई जी इंटू कैपिटल एम 4/3 पाई आर क्यूब इंटू रो। तो इसको हम चाहें तो लिख सकते हैं 2 पाई होल अंडर रूट 3, ऊपर चला जाएगा, पाई 3 पाई आर प्लस एच होल क्यूब दिस 2 पाई व्हाट वी हैव राइट डाउन, ये हमने 2 पाई को अंदर कर लिया, तो कितना हो जाएगा 4 पाई स्क्वायर। तो 4 से 4 विल बी कैंसिल आउट, पाई स्क्वायर से 1 पाई कट गया, तो ये 3 पाई हो गया अपान जी आर जीरो आर क्यू। दिस इज क्वेश्चन नंबर 4। ये देखिए कि हमने 2 पाई को अंदर किया तो दिस विल बिकम 4 पाई स्क्वायर, और 4 से 4 कैंसिल, पाई स्क्वायर से 1 पाई कैंसिल, तो ऊपर 1 पाई बचेगा और 3 ये चला गया, तो 3 पाई आर प्लस एच का होल क्यूब दिस अपॉन जी रो आर क्यूब। दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर द पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन इन केस ऑफ ए मासेस, अगर हम रखें डेंसिटी के टर्म में। ये चीज हो गया। अब एक चीज अगर हम पता करना चाहें इसके वैल्यूज को, अगर हम हाइट एच पे अगर बात करें, इसका वैल्यू कैलकुलेट करना चाहें तो वी कैन कैलकुलेट इट। वो लगभग आता है 84.6 मिनट के आसपास, तो उसकी जरूरत हमें नहीं है। तो दिस इज अबाउट द पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन ऑफ ए सैटेलाइट इन टर्म्स ऑफ डिफरेंट फॉर्मेट। आपको v की वैल्यू 0 की वेलोसिटी के टर्म में है, कैपिटल G के टर्म में भी हो गया, स्मॉल g के टर्म में, और इन टर्म्स ऑफ द अर्थ डेंसिटी के टर्म में भी दिस एक्सप्रेशन वी गॉट।